हमने बच्चों 11 चैप्टर स्टार्ट किया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। We studied about the traditional trade theory and the concerns of developing countries that traditional trade theory hindered their economic growth and it is favorable for the already developed countries. It enhanced the pattern of trade which is already working in such a way that developing country will keep on exporting primary goods while the developed countries will keep on exporting manufactured goods in which they have the comparative advantage, and in this way they will keep on moving forward in technology and in development while developing countries will become dependent on the developed country with the passage of time if this pattern of trade continues. However, there were many other benefits which we may explain with the help of traditional trade theory, and that developing countries may improve their technology, they may spend money on their research and development, and with the passage of time, if their comparative advantage shifts, it may be they adjust their pattern of trade and they may become the developed countries. It is the other point of view, and there are beneficial effects of the trade. For example, full utilization of underdeveloped underemployed economic resources, and it makes possible division of labor, and it provides vehicle for transmission of the new ideas and technology to the developing nations, and it stimulates and facilitates the international flow of capital and so on. There is another view which was about endogenous growth theory. One point that these countries, there was an example of some countries that they grow due to the international trade, but there is other idea with it that they not grow only depending on the international trade, but their internal circumstances are also favorable to grow. So it means that only international trade cannot make a country develop, but there should be internal structural facilities and their overall environment should be facilitating for the development. After the endogenous growth theory, we studied about the types of the terms of trade. There were commodity or net barter terms of trade, income terms of trade, single factor terms of trade. First one is most important, which is usually calculated, and it is price. It is the ratio of the price of exports of a country to the price of imports of a country. अगर किसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस ओवर द टाइम इंक्रीज हो और इंपोर्ट्स की डिक्रीज हो तो आप ये कहेंगे कि इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज़ इम्प्रूव ओवर टाइम। और अगर इससे अपोजिट हो, जो कि यूजुअली डेवलपिंग नेशंस के साथ होता है, कि उनकी इंपोर्ट्स की प्राइसेस ओवर टाइम इंक्रीज होती हैं और एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस ओवर टाइम डिक्रीज होती हैं, तो आप ये कहेंगे कि टर्म कम्युनिटी या नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीजिंग आर डिटेरियोरेटिंग। Now there is said that over time the terms of trade and economic development में concept के next डॉक्यूमेंट बुक में दिया होगा कि commodity terms of trade in developing nations tend to deteriorate over time। कि डेवलपिंग कंट्रीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड जब विद द पैसेज ऑफ द टाइम, वही बात जो ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में थी, उसी के अकॉर्डिंग एक ये बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये पैटर्न ऑफ ट्रेड चलता रहे जिसमें ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स while developed countries have their comparative advantage in manufactured industrial goods. In that case, over time, prices of industrial goods increases and the prices of raw material and primary goods decreases. So, commodity terms of trade developing countries deteriorate. उनकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर गुड्स की रहती है, तो उनकी प्रोडक्शन ओवर टाइम और उनकी प्राइसेस जो सी डिक्रीज होती हैं, तो उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटीरिएट होती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दो दी हुई है। पहली एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो ओवर द टाइम लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर। इन डेवलप्ड कंट्रीज जो जो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उनकी वेजेस भी इंक्रीज होती हैं। वेजेस इंक्रीज होने की वजह से जो गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं, जैसा कि सब डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। और उन प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से उनकी वो गुड्स जो वो एक्सपोर्ट फिर करते हैं उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होती हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, जब प्रोडक्टिविटी लेबर की इंक्रीज होती है तो इट इज़ आर रिफ्लेक्टेड इन लोअर प्राइसेस, कि बजाय इसके कि लेबर की वेजेस इंक्रीज हों
जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वीट है, प्राइमरी गुड्स है, उनकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। वो प्राइसेस डिक्रीज होने की वजह से जब आप उन्हें एक्सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज करते हैं तो वो उनकी एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाती हैं और उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटीरियोरेट होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अब पॉइंट ये है कि डेवलप कंट्रीज में लेबर यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर सेक्टर में लेबर की प्रोडक्टिविटी वैसे भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो उनकी गुड्स की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होती हैं। दूसरी तरफ वेजेस जब इंक्रीज़ होती हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होते हैं। इन दोनों सूरतों में उनको फ़ायदा होता है। जबकि डेवलपिंग नेशन में बजाय इसके कि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ और वेजेस इंक्रीज़ होने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो, आपकी प्राइसेस जो होती हैं वो लोअर हो जाती हैं, क्योंकि जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो प्राइमरी गुड्स होती हैं। सेकेंड रीजन क्या है टर्म्स ऑफ ट्रेड के डिटीरिएट होने की कि डेवलपिंग नेशंस डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस ग्रोज फास्टर देन द डेवलप्ड नेशंस डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। जो फर्स्ट पॉइंट है ये सप्लाई साइड्स के बारे में था। सेकंड पॉइंट है डिमांड साइड की कि डेवलपिंग नेशंस जो भी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती, क्योंकि प्राइमरी गुड्स होती हैं, रॉ मटेरियल्स होती हैं। जबकि जो डेवलपिंग नेशंस है इनकी जो डिमांड है उन कंट्रीज की प्रोडक्शन के लिए, उन कंट्री की फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, आप मोबाइल की डिमांड को देख लें। ये ऐसी डिमांड नहीं है कि भाई आपको जितनी ज़रूरत है बस आपने उतना खरीद लिया है। ऐसा होता है रॉ मटेरियल या बेसिक गुड्स के बारे में, नेसेसिटीज़ के बारे में। ये अब एक से एक नया मॉडल आ रहा है तो डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज की बढ़ती चली जाती है। इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज की डिटीरिएट होती है। ये कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड और स्ट्रक्चर ब्रेक ये डाटा है जिसको यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। सिर्फ डायग्राम दी हुई है, इसकी डिटेल बुक में है। रियल डाटा जो लॉग लिया हुआ है कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड ओवर टाइम। एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक और रीज़न जो डेवलपिंग नेशंस को है उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड के हवाले से कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इनस्टेबल होती हैं, उनकी सप्लाई भी इनस्टेबल होती है, उनकी डिमांड भी इनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से ना तो ये कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट्स पे रिलाई कर नहीं सकते और उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी इम्प्रूव नहीं होती। रीज़न क्या है, डेवलपिंग वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स टेंड टू फेस इनएलास्टिक इंटरनेशनल डिमांड। इनकी डिमांड इंटरनेशनल जो लेवल पे जो भी गुड्स ये एक्सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग, फॉर एग्जांपल वंस अगेन रॉ मटेरियल, बेसिक नेसेसिटी, राइस, व्हीट या फ्रूट भी आप कह लें, पेरिशेबल गुड्स, और बाकी भी कोका, कॉफ़ी, इनकी जो डिमांड है वो इनएलास्टिक होती है। इनएलास्टिक मीन कि अगर आप इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी डिक्रीज़ हो जाए तो लोग उतना ही क्वांटिटी खरीदते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है, ना कि ये कि प्राइस डिक्रीज़ होगी तो उससे ज़्यादा खरीदेंगे। जबकि जो डेवलप्ड नेशंस की गुड्स हैं, जो ये लग्जरीज हैं या नेसेसिटीज नहीं है, मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, इनकी प्राइस डिक्रीज होने से इनकी प्राइस डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। दूसरी बात, नाम। दूसरा इनमें प्राइस फ्लक्चुएशन इन दीज मार्केट डू नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज द क्वांटिटी सोल्ड, दस प्राइस फ्लक्चुएशंस विल जनरेट लार्ज मूवमेंट इन रेवेन्यू कलेक्टेड। Fluctuating environmental conditions weather cause more and larger supply shift in the developing world than in the developed world. इनकी प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप इन पे प्लानिंग वाइज डिपेंड नहीं कर सकते कि इस करंट ईयर में अगर आपकी एक्सपोर्ट्स अर्निंग ये थी नेक्स्ट ईयर में भी ये ही होंगी। इनकी डिमांड इनलास्टिक होने की वजह से एक तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती हैं, दूसरा जो भी इनकी प्रोडक्शन होती है चूँकि वो वेदर पे डिपेंड करती होती है या नेचुरल डिजास्टर की वजह से इसमें सप्लाई शॉक्स भी जो से हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये एग्जांपल है, डायग्राम है फॉर एक्सपोर्ट्स प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड प्राइमरी एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। आप ये एक देख रहे हैं कि इनका एक तो सप्लाई कर्व भी बहुत स्टीप है और डिमांड कर्व भी स्टीप है। इनके स्टीप होने का मतलब ये है
कि इनमें एक थोड़े बहुत शिफ्ट से भी इनकी प्राइसेस में जो चेंजेस आएगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। जबकि ये ये ब्लैक जो सा ये ओरिजिनल सप्लाई का हुआ है और डी जो सा वो ओरिजिनल डिमांड का हुआ है। एस डैश ये है कि अगर किसी वजह से सप्लाई शॉक आए और फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई इंक्रीज हो, मूवमेंट टू द राइट हो, या ये कि डिमांड शाफ्ट गए और आपका डिमांड कर्व डी से डी डैश शिफ्ट हो जाए, तो आपकी प्राइस फौरन ही पी से पी डैश तक गिर जाएगी। और अगर सप्लाई और डिमांड शॉक इकट्ठे आ जाते हैं तो प्राइस पी से पी डैश के बजाय पी डबल डैश तक डिक्रीज हो जाएगी। ये है प्राइस इंस्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी एक्सपोर्ट्स ऑफ डेवलपिंग नेशन। सप्लाई शॉक आने की भी बहुत सी रीजन हो सकती हैं, वेदर कंडीशंस हैं, डिमांड शॉक भी हो सकते हैं क्योंकि ये गुड्स ऐसी नहीं है कि इनके इनके सब्सिट्यूट भी समटाइम अवेलेबल होते हैं या आप किसी और कंट्री से डिमांड कर सकते हैं। और प्राइस इनकी डिमांड वैसे इनएलास्टिक है कि ये भी नहीं है कि प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड जो सी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो प्राइस फ्लक्चुएशन हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसे कहते हैं प्राइस इंस्टेबिलिटी। मतलब क्या है इस बात का कि आपकी अगर एक्सपोर्ट्स अर्निंग इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते अपनी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये सारा चैप्टर जो हम पढ़े हैं क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि फ्लक्चुएटिंग एक्सपोर्ट्स प्राइसेस विल रिजल्ट इन एक्सपोर्ट्स अर्निंग दैट वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि आपकी एक्सपोर्ट्स अर्निंग में हर साल दूसरे से पिछले साल में इतना डिफरेंस होगा जब तक आप तो कंफर्म ना हो कि एटलीस्ट इतनी अर्निंग है आपकी एक्सपोर्ट्स की, ज़ाहिर आप डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते। व्हेन एक्सपोर्ट्स अर्निंग राइज, एक्सपोर्टर इंक्रीज कंजम्पशन, investment and bank together, which multiply through the economy. A subsequent fall in the exports earning result in a multiple contraction of the national income, savings and investment. कि अगर आप एक्सपोर्ट्स अर्निंग पे डिपेंड करते हैं तो इन दैट केस आपकी इंक्रीज होने की सूरत में मल्टीप्लायर इफेक्ट से आपकी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक चेंज आएगी। लेकिन अगर डिक्रीज करती हैं तो भी उसी तेज़ी से मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आपने माइक्रो में पढ़ा था वो आपकी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देगा। These boom bust periods make development planning difficult. कि अगर इतनी तेजी से इसमें बूम और रिसेशन आता हो इन अर्निंग्स में या डिक्रीज आता हो तो आपके लिए प्लानिंग इजी नहीं रहती, इट बिकम डिफिकल्ट। Now, after this claim that the exports are very unstable of developing countries, there were empirical research, there were research on the original data. It was by McBean in 1966. He found that while export instability is greater for developing nations, the degree of instability was not very large in an absolute sense. कि अगर कंपेयर करें डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को तो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सपोर्ट ज़्यादा इंस्टेबल थी, लेकिन ओवरऑल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि समझी जा रही थी। आप बुक से इसको देखें तो इंडेक्स दिया हुआ है कि 0 से 100 के स्केल पे अगर मेजर करें तो शायद 25-45 के बीच थी फ्लक्चुएशन। ग्रेट फ्लक्चुएशंस इन ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये उन एम्पिरिकल रिसर्च के कंक्लूजन्स हैं। Great fluctuation in exports earnings of developing nations did not lead to significant fluctuation in their national income, saving and investment and did not interfere with development efforts. It was also concluded and it was observed that कि export earning में जो fluctuations थी वो सिग्निफिकेंट थी, बट उससे जो आपकी नेशनल इनकम है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात अभी हुई पीछे, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आपकी डेवलपमेंट एफर्ट जो सी हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं या आप बिल्कुल उनको प्लान ना कर सकें। एक्सपोर्ट्स अर्निंग की जो चेंजेस थी उन्होंने इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला नेशनल इनकम फ्लक्चुएशन पे, सेविंग या इन्वेस्टमेंट पे। एंड ही आल्सो कंक्लूडेड costly commodity agreement demanded by the developing nations are not warranted, क्योंकि ये कम्युनिटी एग्रीमेंट जो से हैं वो डेवलपिंग नेशंस की डिमांड थी फॉर फ्रॉम डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ बाद में बनी मतलब फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हमारी जो गुड्स हैं उनकी प्राइस स्टेबल नहीं है तो हमारे साथ एग्रीमेंट पहले कर लिए करें कि आप हमारी कम्युनिटीज इस तरह इस प्राइस पे परचेज करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्चर की एग्रीमेंट जो उनसे हैं वो कास्टली हैं, उनकी कास्ट ज़्यादा, उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो डेवलपिंग कंट्री की एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनके साथ ये एग्रीमेंट किए जाए। ये उनकी रिसर्च के कंक्लूजन दिया। इसके बावजूद देर वर मैनी एक्सपोर्ट्स कम्युनिटी एग्रीमेंट्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सम ऑफ देम आर given here. For example, buffer stock. Buffer stock में क्या है? It involves the purchase of the commodity when the commodity price falls below an agreed minimum price
and the sale of commodity out of the stock when the commodity price rises above the maximum price. इस बफर स्टॉक कमोडिटी एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप कोई भी कमोडिटी डेवलप्ड नेशन है या दूसरा कंट्री आप खरीद लें या आप अपने लोगों से खरीद लें जब उसकी प्राइसेस कम हो, और जब उनकी प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज हो तो आप इनको सेल कर दें ताकि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। Commodity agreement export control regulate the quantity of the commodity exported by each nation in order to stabilize commodity price। कि वो प्राइमरी गुड्स जिनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो उनमें आप क्या करें कि डिफरेंट कंट्रीज का कोटा फिक्स कर दें कि कोई भी कंट्री इससे ज़्यादा ही कमोडिटी सेल नहीं करेगा, ताकि सप्लाई इतनी ज़्यादा इंक्रीज ना हो कि प्राइसेस बहुत डिक्रीज हो जाए। प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए आप क्वांटिटी जो सी है उसको लिमिट कर दें, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल। Purchase contracts are long-term multilateral agreements that stipulate a minimum price at which importing nations agree to purchase a specific quantity of the commodity and a maximum price at which exporting nations agree to sell specified amount of the commodity. Purchase contracts, these are the long term कॉन्ट्रैक्ट और इनकी टू टाइप्स हैं। एक टाइप ये है कि आप मिनिमम प्राइस जो उनकी है वो फिक्स करेंगे, वो कंट्री जो इम्पोर्ट कर रहा है वो फिक्स करेगा, लेकिन इस प्राइस पे आप जितनी भी क्वांटिटी होगी वो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है वो डिसाइड करेगा और वो क्वांटिटी उस कंट्री को स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर ले और उसके बाद जो भी उसके जहाँ पे एग्रीमेंट आता है और उसके बाद जो इम्पोर्टिंग नेशन है वो ये डिसाइड करेगी कि वो इस मैक्सिमम प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि मिनिमम प्राइस इम्पोर्टिंग कंट्री डिसाइड करेगा और एक्सपोर्ट क्वांटिटी एक्सपोर्टिंग कंट्री की आपने इतनी हमारी परचेज करनी है। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि मैक्सिमम प्राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री डिसाइड करेगा और क्वांटिटी जो सी है वो इम्पोर्टिंग कंट्री डिसाइड करेगा। इसकी एग्जांपल दी है इंटरनेशनल व्हीट एग्रीमेंट 1949। ये हमारा टॉपिक था एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड डिफरेंट एग्रीमेंट्स एंड एम्पिरिकल फैक्ट्स अबाउट द एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका क्या है। बाकी जो हमने अभी तक देखा है इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वंस अगेन अब क्लास में बच्चे हैं कुछ तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने अपनी असाइनमेंट 5 अगस्त से पहले 4th असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। उसके बाद किसी भी असाइनमेंट की कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है कि हमें अपना रिजल्ट अरेंज करना है, एग्जाम फाइनल की तैयारी करनी है, बहुत टाइम हो गया। एनी क्वेश्चन? नेशनल रेमिटेंसेस का और इकोनॉमिक ग्रोथ का वंस अगेन ज़रा उसको क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं भूल गई। बच्चे क्वेश्चन जो सा उसको ज़रा रिवाइज कर दीजिएगा, दोबारा मुझे याद नहीं है पूरा। जी मैम क्वेश्चन ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इंटरनेशनल रेमिटेंसेस में काफी हद तक कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ कहते हैं नेगेटिव रिलेशन उसमें है, आपने तो कोई करेंसी की जरा से बात भी की हुई एक्सप्लेन थी। कर। जी मैम, करेंसी की जो फ्लक्चुएशन आती है इंटरनेशनल रेमिटेंसेस की वजह से, भी तो मैम आती है जी। जी मैम आती है, क्योंकि अगर एक कंट्री के पास ज्यादा रेमिटेंसेस आ जाते हैं तो देन प्राइस जो है वो लोअर हो जाती है। तो मैम ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह है? वंस अगेन वही बात कि कभी भी कोई एक फैक्टर ज़ाहिर है कि किसी भी इस तरह की चीज़ में काम नहीं कर रहा होता। पहली बात, जो एक पॉइंट आपने कहा है कि रेमिटेंसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसमें पहले आप ये देखेंगे कि किसी भी कंट्री की रेमिटेंसेस जो उनकी हैं उनकी वॉल्यूम क्या है। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जिनमें रेमिटेंसेस का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा, बल्कि हम इन पर बहुत डिपेंडेंट भी हैं एक तरह से। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेमिटेंसेस का ज़रा हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप भी समझा जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज, कोई होंगी जिनका रिलेशनशिप ज़रा प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वरना नॉर्मली कम से कम स्टडीज यही प्रूव करती हैं कि देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेमिटेंसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि अगर रेमिटेंसेस तो हैं लेकिन उनमें दो टाइप ऑफ रेमिटेंसेस होती हैं, आपको पता है, एक लीगल एक इलीगल। जो इलीगल होती है चूँकि वो आपके सिस्टम में काउंट नहीं हो रही होती, उसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ में उस तरह से ना तो मेजर कर पाते हैं, ना उसका करेंसी पे इफेक्ट जो है वो उस तरह से होता है।
तो करेंसी पे इफेक्ट सिर्फ उन रेमिटेंसेस का होता है जो लीगली होती हैं, जिनमें प्रॉपरली आप वहाँ से फॉरेन करेंसी भेजें जो कि यहाँ पे आके एक्सचेंज हो। जब इफेक्ट फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में आ जाती है तो ज़ाहिर है उस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, आपकी करेंसी की वैल्यू इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप उसको रिमिटेंसेज जो सी उनका आपका वे क्या है भेजने का, वो हुंडी जिसे कहते हैं, ये ऐसा तरीका है जिसमें बहुत से लोग अपने वो टैक्सेस बचाने के लिए या मतलब वो उसको शो नहीं करना चाहते, वट एवर द रीजन, वो क्या करते हैं कि वहाँ पे किसी भी शख्स को उस कंट्री में उतनी अमाउंट दे देते हैं और उस शख्स के रिलेटिव्स यहाँ पे वो अमाउंट आपके रिलेटिव्स को जिन्हें आप देना चाहते हैं दे देते हैं। इन दैट केस उस कंट्री की करेंसी जो सी है उधर ही रहती है और इस कंट्री की करेंसी और अमाउंट इधर ही रहती है, सिर्फ उसमें हैंड जो से वो शिफ्ट होते हैं, अदरवाइज उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए इलीगल हो तो फिर तो ज़रा रिमिटेंसेस का पॉजिटिव इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, दूसरा आपकी करेंसी से स्टेबलाइज होगी। इलीगल हो तो ज़ाहिर है उसकी कोई एक तरह से कंसिडरेशन नहीं है सिवाय इसके कि आपकी लोकल कंजम्पशन जो है वो बूस्ट होगी। तो यही है इसमें वैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा मैम, इसमें ज्यादा डिपेंडेंस हो जिस कंट्री की, जैसे पाकिस्तान की है, तो मैम ऐसे केस में फिर क्या ये एक अच्छा इकोनॉमिक फैक्टर है या नहीं? अगर आपको मिल रही है रिमिटेंसेस आपके लोग, ये इसी तरह की बात है ना जैसे गुड्स में हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आपके लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं तो आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट की है, उनकी आपको अर्निंग जो सी मिल रही है तो ज़ाहिर अच्छी बात है। अगर आपकी अर्निंग जो सी आपको नहीं मिल रही, मैंने आपको कहा एक लीगल तरीके से नहीं आ रही, दैट्स अनदर थिंग। अदरवाइज इसको आप एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज कह सकते हैं कि आपके लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं, आपने सर्विस एक्सपोर्ट्स की है और उसकी अर्निंग आपको आ रही है तो अच्छी बात है, आपकी जीडीपी में ऐड ही हो रहा है ना कुछ एक बच्चा क्लास ओके में मैम। अब आ रहा है, सीआर मुझे इनकी अटेंडेंस भेज दीजिएगा, जल्दी से भेज दीजिएगा ताकि मैं आज ही इनको अपलोड करके खत्म कर दूँ। अल्लाह हाफिज बच्चों।